हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। एज यू ऑल नो 4 मार्च को आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है एंड आपको डाउट है कि इकोनॉमिक्स के पेपर में से कौन से चैप्टर्स से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं और कैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा आपको इस वीडियो के एंड तक। मेरे साथ बने रहिए। डोंट वरी, जब एमसीसी हो आपके साथ, हर चैलेंज होगा आसान, हर सफलता होगी आपके हाथ। जैसा कि आपके इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। 100% प्रोबेबिलिटी है कि आपका न्यूमेरिकल का पोर्शन सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स में से पूछा जाए। तो बस हम इस वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन ही सॉल्व करेंगे। आपके चैप्टर्स जहाँ से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं वो चैप्टर्स है चैप्टर 1 डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चैप्टर नंबर 2 प्रोडक्शन फंक्शन, चैप्टर नंबर 3 कॉस्ट एंड चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इस वीडियो में हम टोटल 15 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बस प्रॉब्लम सॉल्व। लेट्स स्टार्ट। Question number 1. Suppose a consumer can afford to buy 6 units of good X and 8 units of good Y. If she spends her entire income, the prices of two goods are ₹6 and ₹8 respectively. How much is the consumer's income? Given quantity 1 and quantity 2. Q1 हमारे पास दे के रखा है 6 यूनिट्स, Q2 दे के रखा है 8 यूनिट्स and prices of two goods are P1 and P2 equals to ₹6 and ₹8 respectively. We have to find consumer's income. Formula of consumer income equals to Q1 multiplied by P1 plus Q2 multiplied by P2. Q1 6 units multiplied by 6 P1, Q2 8 units multiplied by price 8. 6 6 are 36, 8 8s are 64. Total consumer incomes are 100 rupees. I hope you understand. Next, question number 2. When a price of a good is ₹12 per unit, the consumer buys 24 units of goods. When the price rises to ₹14 per unit, the consumer buys 20 units. Calculate price elasticity of demand. ये वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एग्जाम में। P1 दे के रखा है 12 रुपीज़ पर यूनिट एंड Q1 दे के रखा है 24 यूनिट्स। When a price rises to 14 रुपीज़, Q2 हमारे पास आ गया 20 यूनिट्स। ये सब हमें क्वेश्चन में दिया है। वी हैव टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फाइंड price elasticity of demand, that is ED. Formula of ED equals to change in quantity upon change in price multiplied by P divided by Q. We have to find change in quantity and change in price. Change in quantities formula is Q2 minus Q1, P2 minus P1. Q2 20 units minus 24, P2 14 rupees minus 12, minus of 4 and 2. Put the value of change in Q minus 4 upon 2 multiply by P1 divided by Q1 equals to
ED equals to -1. ED equals to -1. ED is unitary elastic. Next question. Consider a market where there are just two consumers and suppose their demand for the goods are given as follows. Calculate market demand. ये वाला क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पहले देखने को मिल चुका है. क्वेश्चन नंबर 3. प्राइस गिवन है. डिमांड फॉर कंज्यूमर 1, डिमांड फॉर कंज्यूमर 2. One, two, three, four, 5, 6, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 24, 20, 18, 16, 14 and 12. To find market demand, simple सा formula है D1 plus D2. Demand for consumer 1 plus demand for consumer 2, that is 9 plus 24, 8 plus 20, 7 plus 18, 6 plus 16, 5 plus 14, 4 plus 12. We just simply add these numbers. First one 33, 28, 25, 22, 19 and last 16. Next question. Question number 4. जस्ट अभी हमने एक क्वेश्चन 2 सॉल्व करा, वैसे ही ये भी क्वेश्चन है. कंसिडर द डिमांड फॉर अ गुड एट अ प्राइस ₹4. P1 गिवन है हमारे पास ₹4. द डिमांड फॉर द गुड्स इज 25. Q1 दे के रखा है 25 यूनिट्स. Suppose the price of goods increases to ₹5. प्राइजेस ₹5 पे इंक्रीज हो गए, तक इंक्रीज हो गए. डिमांड फॉर द गुड्स फॉल्स टू 20 यूनिट्स. Q2 हमारे पास हो गया 20 यूनिट्स. वी हैव टू फाइंड द प्राइस elasticity of demand. Just find simply change in Q and change in P. Change in P, 5 minus 4. P2 minus P1 equals to 5 minus 4, which is 1. Now change in Q, Q2 minus Q1, which is 20 minus 25, that is minus of 5. Formula of price elasticity of demand is change in Q upon change in P multiplied by P divided by Q. Change in Q -5, change in P 1 multiplied by P1 and Q1. P1 4, Q1 25. That is -4 by 5. Or we can say minus of 0.8. Next question. Question number 5. Suppose the price elasticity for a good is -0.2. In this question हमें ED दे के रखा है -0.2. If there is a 5% increase in the price of good. Now in this question percentage change in price given है हमारे पास 5%. By what percent will the demand for the goods go down? कितने परसेंट से डिमांड डिक्रीज हो जाएगी? फाइंड करना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करने का एक और फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन quantity demanded
डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फाइंड करना है। एज इट इज हम लोग लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्यूडी अपॉन परसेंटेज चेंज इन 5। प्राइस हमें 5 दे के रखा है, ईडी हमारे पास -0.2 है। मल्टीप्लाई कर देंगे 5 डिवाइड में इक्वल टू के उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। -0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। -1 equals to percentage change in quantity demanded. Next question, question number 6. When the price of good is rupees 12 units, the consumer buys the units of that goods. When prices rise to 14 per units, the consumer buys 20 units. Calculate price elasticity of demand. इससे रिलेटेड अभी हमने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th, द फॉलोइंग टेबल्स गिव्स द मार्जिनल प्रोडक्ट शेड्यूल ऑफ लेबर, कैलकुलेट द टोटल एंड एवरेज शेड्यूल ऑफ द लेबर। लेबर है हमारे पास और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर गिवन है 1 2 3 4 5 6 3 5 7 5 3 1. We have to find total product as well as average product. Formula of TPA equals to MPL equals to TPN minus TPN minus 1, which is equals to TPN minus 1 plus MPL. Simply TPN minus 1 इक्वल टू के इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो TPN minus 1 plus MPL. We have to find, सिंपली इन्हें ऐड करके हमें TPL निकालना है। तो फर्स्ट एज इट इज 3, सेकेंड 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 + 5 20, 20 + 3 23, 23 + 1 24. Formula of APL, TPL divided by labor. TPL 3/1, 8/2, 15/3, 20/4, 23/5, 24/6. By dividing these numbers, 3 4 5 5 4.6 and 4. Question number 9. Complete the following table. लेबर गिवन है, टीपी गिवन है, एपी भी है एंड एमपी भी है। फिलिंग द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है 1 2 3 25 13 एंड 10। फॉर्मूलाज लिख लेते हैं हम लोग एक बार ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए। APL इक्वल्स टू TP divided by labor, MPL equals to TPN minus TPN minus 1. Okay.
हमारे पास AP गिवन है 30। इफ यू सिंपली मल्टीप्लाई AP बाय लेबर, यहाँ से निकल जाएगा फॉर्मूला TP इक्वल्स टू AP मल्टीप्लाई बाय लेबर। 13 मल्टीप्लाई बाय 3 39। नेक्स्ट MP फाइंड करना है 25 माइनस 10 15। AP फाइंड करना है 25 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 12.5। MP फाइंड करना है 39 माइनस 25 14। दो और फिलिंग द ब्लैंक्स बच रहे हैं, 2 फिलिंग द ब्लैंक्स आर रिमेनिंग। 25 माइनस 15 कैसे करेंगे इसको? हमें फाइंड करना है TPn माइनस 1। TPn में से MPL, यहाँ पे TPn माइनस 1 नेगेटिव में इक्वल टू के इधर जाके पॉजिटिव में हो जाएगा। MPL यहाँ पे पॉजिटिव में इक्वल टू के इधर जाके नेगेटिव में हो जाएगा। इस फॉर्मूले से हम लोग सिंपली फाइंड कर सकते हैं। TP हमारे पास 25 दिया है, MP हमारे पास 15 दिया है, तो सिंपल आ जाएगा 10। अगर हमारे पास TP निकल गया तो AP भी निकल जाएगा। AP का फॉर्मूला क्या है? TP डिवाइडेड बाय लेबर। TP कितना है हमारे पास 10, लेबर कितना है 1, 10 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 10। क्वेश्चन नंबर 9, लेट द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ फर्म बी Q इक्वल्स टू 5L to the power half K to the power half. Find out the maximum possible output that the firm can produce with 100 units of L and 100 units of K. Question number 9. Equation given है, L की वैल्यू 100 गिवन है, K की वैल्यू 100 गिवन है। सिंपली हम लोग इन वैल्यूज को इक्वेशन में पुट ऑन कर देंगे। 5L टू द पावर हाफ K टू द पावर हाफ। हाफ को हम लोग √100 भी लिख सकते हैं। 100 किसका अंडर रूट है? 10 का। 100 किसका अंडर रूट है? 10 का। आंसर आ जाएगा Q इक्वल्स टू 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। लेट द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ फर्म बी Q इक्वल्स टू 2L square K square. Find out the maximum possible output that the firm can produce with 2 units of L and 2 units of K. What is the maximum possible output the firm can produce with 0 units of L and 10 units of K? टू L की वैल्यू गिवन है 2 स्क्वायर, K की वैल्यू 2 स्क्वायर, 2 4 and 4, 2 4s are 8, 8 4s are 32। फर्स्ट हमने फाइंड कर लिया Q इक्वल्स टू 32। सेकेंड Q इक्वल्स टू 2 0 स्क्वायर 10 स्क्वायर। अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई हम 0 से करते हैं तो आंसर भी हमारा 0 आता है। नो नीड टू सॉल्व कंप्लीट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कॉस्ट चैप्टर से हमारे पास न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट TFC, TVC, AC, AVC एंड MC फ्रॉम द फॉलोइंग शेड्यूल। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला लिखने से पहले हम लोग TFC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। TFC कांस्टेंट रहता है। अगर हम आउटपुट नहीं भी बनाएंगे तो भी TFC जो
टीसी जो 0 यूनिट्स पे रहेगा वही आपका टीएफसी बन जाएगा। 0 यूनिट्स पे टीसी 600 है और टीएफसी थ्रू आउट द नंबर ऑफ आउटपुट हमेशा कांस्टेंट रहता है। टीवीसी, टीवीसी का फॉर्मूला है हमारे पास टीसी माइनस टीएफसी। टीसी 600 माइनस 600 0, 900 माइनस 600 300, 1000 माइनस 600 400, 1050 माइनस 600 450, 1150 माइनस 600 550, 1350 माइनस 600 750, 1800 माइनस 600 1200। एसी फाइंड करना है। एसी फाइंड करने का फॉर्मूला एसी इक्वल्स टू टीसी बाय क्यू। क्यू आपका आउटपुट है। एसी कितना हो गया? टीसी हमारे पास 600 है डिवाइडेड बाय क्यू। एनी नंबर इफ डिवाइड्स बाय 0 आंसर विल बी 0। नेक्स्ट 900 डिवाइड बाय 1 900, 1000 डिवाइड बाय 2 500, 1050 डिवाइड बाय 3 350, 1150 divided by 4 1150 divided by 4 287.5, 1350 divided by 5 270, 1800 divided by 6 300। एबीसी फाइंड करना है। एबीसी का फॉर्मूला आपके पास टीवीसी गिवन है, अगर आप इसको क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा एबीसी। 300 डिवाइडेड बाय 1 300, 400 डिवाइडेड बाय 2 200, 450 डिवाइडेड बाय 3 150, 550 डिवाइडेड बाय 4 137.4, 750 डिवाइडेड बाय 5 150, 1200 डिवाइडेड बाय 6 200। एमसी फाइंड करना है। टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1। टीसी एन 600 900 माइनस 600 300, 1000 माइनस 900 100, 1050 माइनस 100 50, 1150 माइनस 1050 50, 1350 minus 1150 200, 1800 minus 1350 450। Next question. Question number 12. The following table shows the average variable cost at different levels of output by the firm. Its total costs are 60. Find out its average total cost and marginal cost at each level of output. Question आपके लिए homework रहेगा. Next question. Question number 13. Given below is the cost schedule of a firm. Its average fixed cost is rupees 20 when it produces 3 units. Calculate TFC and TVC. आउटपुट है, एबीसी भी गिवन है, आप इजीली टीएफसी और टीवीसी फाइंड कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14. इफ द क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेज बाय 15% in response to 15% increase in price, what is the nature of elasticity of supply? Percentage change in quantity supplied आपके पास गिवन है 15, परसेंटेज चेंज इन प्राइस गिवन है 15। इजीली फाइंड कर सकते हो। ES इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन quantity supplied divided by percentage change in price। percentage change in quantity supplied 15 है, percentage change in price 15 है, तो आपका ES आ गया 1। elasticity of supply is equals to 1 which is unitary elastic। Next question number 15. When the price of a doll P1 given है 4 rupees per doll, a doll maker supplies 8 dolls per day। Q1 given है 8।
If the price rises to ₹5 per doll, P2 given है 5, he is willing to supply 10 dolls per day. 10 dolls आपकी Q2 given है. Calculate ES. ES का formula change in Q upon change in P multiply by P divided by Q. Change in Q का formula Q2 minus Q1. चेंज इन P का फॉर्मूला P2 माइनस P1. 2 and 1. चेंज इन Q 2, चेंज इन P 1, P1 4, Q1 8, which is 1. Here also elasticity of supply is unitary elastic. Next, question number 16. Price elasticity of supply of a good is 5. A producer sells 500 units of this good at ₹5 per unit. How much will he be willing to sell at a price of ₹6 per unit? आपको क्वेश्चन में गिवन है elasticity of supply 5, Q1 गिवन है 500, P1 गिवन है 5, P2 भी गिवन है 6. फाइंड करना है Q2. इजीली फाइंड कर सकते हो. QS इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P मल्टीप्लाई बाय P1 डिवाइडेड बाय Q1. चेंज इन Q निकालने का फॉर्मूला Q2 माइनस Q1. चेंज इन P निकालने का फॉर्मूला P2 माइनस P1. चेंज इन Q इलास्टिसिटी हमारे पास है 5. चेंज इन Q Q2 माइनस 500. चेंज इन P 1 मल्टीप्लाई बाय P1 5, Q1 500. 100 इक्वल टू के इस साइड है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो 500 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू Q2 माइनस 500. 500 इक्वल्स टू Q2 माइनस 500. 500 इधर नेगेटिव में इक्वल टू के उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. 500 प्लस 500 इक्वल्स टू Q2. 1000 इक्वल्स टू Q2. आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. The price elasticity of supply of a commodity is 2.5 at a price of 5 per unit. Its quantity supplied is 300 units. Calculate its quantity supplied at price of ₹4 per unit. आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो. सेम अभी जैसा हमने क्वेश्चन सॉल्व करा वैसा ही ये भी एक क्वेश्चन है. आई होप आपको इस वीडियो को देख के आपके सभी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे और जो इकोनॉमिक्स का न्यूमेरिकल को लेकर डर था वो भी अब ख़त्म हो चुका होगा. आगे भी इस तरीके की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मित्तल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस. इन्हीं क्वेश्चंस का PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा. Thanks for watching our channel.